relation. Then step 2, we determine the cost of each level. Simply the tree is like this. This means this is divided into, again subdivided into same sub problems. And so on. So this is the node at level 0. This is level 1. These are the nodes at level 2. ये जितने भी नोड हैं, ये नोड सारे क्या हैं, ये जो है these nodes are at level 0, these nodes are at level 1, these nodes are at level 2 and level 3 and so on. Level 3 and so on. So this means in step second we determine the cost of each level. Cost of each level. Then cost of each level means cost of each level is just the sum of, this is equal to what? This is equal to summation of cost of each node, cost of each node in that level. ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर लेवल 0 की कास्ट डिटरमिन करना है, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ कास्ट ऑफ ईच नोड इन दैट लेवल. 0 नोड पे एक ही नोड है, सिंपली उसकी कास्ट क्या होगी. देन कास्ट एट लेवल 1, कास्ट एट लेवल 1 मींस लेवल 1 द कास्ट ऑफ ईच नोड इन दैट लेवल, समेशन ऑफ कास्ट ऑफ, तो यहाँ 2 हैं तो दोनों की कास्ट को हम सम कर देंगे. सिमिलरली कास्ट एट लेवल 2, यदि 4 नोड है वहां पे तो 4 नोड की कास्ट को सम कर देंगे एंड सो ऑन. देन total number of level. The next question is in a step second, after determining cost of each level, we determine the total number of level in the recursion tree. Total number of levels in recursion tree, or we can also say that we determine the height of recursion tree. Then the number of, then third step is the number of nodes in the last level. जब ट्री है तो सपोज लास्ट लेवल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो we determine the number of nodes in the last level and then cost of the last level. And after that, after determining these points, add the cost of all the levels, means in step 3, we find the total cost of recursion tree. We determine the total cost of recursion tree. Total cost of recursion tree is what? Total cost of recursion tree is equal to summation of, this is equal to summation of cost of the tree, recursion tree, summation of cost tree of each level. ईच लेवल का कास्ट निकालेंगे, फिर टोटल हम सम करेंगे. कॉस्ट ऑफ रिकर्जन ट्री ऑफ, समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिकर्जन ट्री ऑफ ईच लेवल, and then we simplify this expression. We simplify सब कुछ लोग ज्वाइन कर प्रतीक्षा में हैं.
अच्छा अच्छा, एक मिनट जस्ट। ओके, तो we simplify the expression total cost expression that represents a total cost. We simplify the expression that represents a total cost to obtain solution, to obtain solution in terms of asymptotic notation. In terms of asymptotic notation. So these are the three steps generally we used in a recursion tree to obtain the solution of a problem, means to obtain the expression which is written in asymptotic form. तो step first क्या है, हम simply we draw a recursion tree. In step first, we draw a recursion tree based on a given recurrence relation. Then in step second हम क्या करेंगे, we determine the cost of each level. First यहाँ पे क्या है, what is the meaning of this? Means each node represents the cost of single sub problem. In a recursion tree, ये नोड है तो ये सिंगल सब प्रॉब्लम का कॉस्ट डिटरमिन कर रहा है, ये सिंगल सब प्रॉब्लम कॉस्ट डिटरमिन कर रहा है, ये सिंगल सब प्रॉब्लम, सिमिलरली दिस एंड दिस. So each node represents the cost of single sub problem somewhere in the set of recursive relation or recursion tree, and then we sum up the cost of all the nodes to obtain the total cost, and then we simplify this expression in the form of asymptotic notation to obtain the solution. Okay, so here we explain this stepwise. Means first we draw a recursion tree based on a given recurrence relation, then we determine cost of each level. First we determine cost of each node, then we determine cost of each level. Cost of each level is what? Cost of each level is the sum of cost of each node in that level. Then total number of levels in the recursion tree. Then next find how many numbers, means what is the depth of recursion tree, depth or height of recursion tree, and then the number of nodes in the last level, how many number of nodes in the last level, and finally the cost of last level, and then we sum up the total. In step 3 we sum up the total, means cost of recursion tree of each level. This represents summation of cost of recursion tree at each level. This represents the total cost of recursion tree, and we simplify this expression to solve the to obtain solution in terms of asymptotic notation. So let us consider example here. Suppose the recursion relation, solve this recurrence relation, Tn is equal to 2Tn by 2 plus n. So generally when the recurrence relation is written in this form, so here we know that what these are the, means each problem is divided into two sub problem. ये क्या है, number of sub problems, and what is the size of, ये किसको represent कर रहा है, size of sub problem, and this is the at each level the number of sub problems. ठीक है, this represents the number of sub problems at each level. This represents the number of sub problems at each level. सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। यस सर, बहुत ज्यादा स्लो है। यस सर, बहुत स्लो है। It's okay. Now my voice is clear. यस सर, आप सही आ रही है।
It's okay. Yes, sir. Tn, suppose this is a, let us consider this example, Tn is equal to 2Tn by 2 plus n. तो यहाँ पे देखिए the recurrence relation is in this form. तो this represents what? ये जो n by 2 है, t of n by 2, this means ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n by 2 मीन्स द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एट ईच लेवल. ईच प्रॉब्लम जैसे हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसका रिकर्जेंट ट्री सपोज करिए भी ड्रा कर रहे हैं हम. तो देखिए दिस इज द प्रॉब्लम. अब दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम. ये 2 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगी. व्हाट इज द साइज ऑफ, अब ये क्या है? ये जो n by 2 है, n by 2 रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम. तो इसकी साइज, तो ये प्रॉब्लम तो होल प्रॉब्लम, इसकी साइज क्या है? n है. इसकी साइज क्या है इस प्रॉब्लम की? n by 2, या हम कह सकते हैं t ऑफ n. इसको हम t ऑफ n by 2, t ऑफ n by 2. Similarly, when we go to next step, then this is also divided into sub problems. Each of size क्या है? n by 2. each sub problem को size in place of n, here we put n by 2. तो क्या हो जाएगा? This is also divided into 2 sub problems and the size of ये हो जाएगा t of n by 4, t of n by 4. Similarly, here this is also each sub problem is divided into 2 sub problems. तो ये क्या हो जाएगा? t of n by 4, t of n by 4 and so on. Similarly, again this is expanded to this means t of n. In this we put n by 2 in place of n because each time the problem is divided into 2 सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n by 2. तो अब इसको 2 में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? दिस इज, अब यहाँ पे ये क्या होगा? t ऑफ n by 8. Similarly, this is also t of n by 8. This is t of n by 8, t of n by 8. Similarly, this is n by 8, t of n by 8, t of n by 8. Similarly, this is also divided t of n by 8, t of n by 8 and so on. In this way, last we divided the sub problem until the size of each sub problem is reduces up to 1. Means last में क्या होगा? t of 1, t of 1 up to t of 1. In this way, just wait a few minutes. I will come back. Sorry for interrupting. So here, each time the problem is divided uh, into 2 sub problem, each of size n by 2, and then each sub problem of size n by 2 will get divided into 2 sub problem of size n by 4 and so on. Here size n by 4, then n by 8 and up to at the last level. तो how many number of labels in this tree? अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो इसको बोलेंगे कि this node is at level 0. These nodes are at level 1. Similarly, these nodes are at level 2. These nodes are at level 3 and so on.
in this way, the last label, this is suppose the last label. तो how many number of nodes, हमें यहाँ पे क्या डिटरमिन करना है कि how many number of nodes in this label, last label, and what is the cost. नेक्स्ट डिटरमिन करना है कि what is the cost of each node. तो यहाँ पे ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This n represents the cost of combining and dividing. Cost of combining and dividing the problems. ठीक है, this represents the dividing cost of dividing and combining all sub problems to achieve the solution of a whole problem. So this represents this. तो cost of each node की क्या होगी? Generally cost of each node is n. Here जो root node होगा उसकी cost क्या होगी? The root node, this represents the cost of root node. ये n जो है root nodes की cost क्या होगी? n, या यहाँ पे cn है तो root nodes की cost क्या हो जाएगी? cn सपोज करिए यहाँ पे क्या है 2tn/2 प्लस cn, या सिंपली ये रिलेशन लिखा है कि tn इज इक्वल टू 2t n/2 plus theta of n. So theta of n means what is the value of this? This is less or equal to c of n by using the definition of theta notation. So simply what happens here? This is also written as tn is equal to 2t n/2 plus cn. So this is the cost. This cn is the cost of dividing problem into several sub problems and combining solution of all sub problems to achieve the solution of whole problem. तो अब यहाँ पे देखिए हमें cost और at first we determine the cost at each label. Cost at each label. क्योंकि step first में क्या था? Step first था first we make a recursion tree, we draw recursion tree, तो हमने recursion tree, then we determine the cost of each label. तो cost of each label determine करना है. So this is the cost of each node in that label, then total number of labels in the recursion tree and number of nodes in the last label and cost of last label. ये हमें determine करना है, then हम total sum कर देंगे तो we find the. In this way we make a recursion tree and after that we will determine the cost at each label. So the recursion tree shown as this means this represents a level 0, level 1, level 2, level 3, and in this way the recursion tree, the given recurrence relation shows that the cost of dividing problem of size n into its two sub problem and then combining the solution. Cost of dividing problem of size n into two sub problems and then combining its solution is n. So what is the cost of dividing the problem into two sub problem? ये देखिए यहाँ पे क्या है इसका? This every time ये two sub problem में divide कर रहा है. Each of size n/2, इसकी कास्ट क्या है? cn है. तो ठीक है, यहाँ पे tn/4 होगा. जब tn है तो इसकी कास्ट क्या है? cn है. tn/4 होगा तो क्या हो जाएगा कास्ट? n की जगह पे हम n/4 रख देंगे तो इसकी कास्ट क्या हो जाएगी? cn/4 हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी कास्ट क्या हो जाएगी? n/2 है तो ये cn/2 हो जाएगा. सिमिलरली n/2 है तो इसकी कास्ट क्या हो जाएगी? cn/2 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपली हमने लिखा है कि दिस इज tn इज इक्वल टू 2tn/2. तो अब यहाँ पे यदि tn/2 हमें निकालना है तो tn/2 इज इक्वल टू 2 ऑफ t. n की जगह हम क्या रख देंगे? n/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा n/4 प्लस c ऑफ n/2. c ऑफ n/2. तो इसकी कास्ट क्या आएगी? व्हेन वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 4 सब प्रॉब्लम each of size n/4, तो उसकी कास्ट क्या आ रही? each की कास्ट आ रही, each नोड की कास्ट क्या आ रही है? c of n/2. तो अब यहाँ पे देखिए इसकी कास्ट क्या होगी? तो वी अगेन मेक एंड कास्ट वाइज. सर आपकी वॉइस फिर स्लो हो गई. नाउ माय वॉइस इज क्लियर? हेलो. हाँ सर. ओके. तो वी अगेन मेक अ recursion tree cost wise.
तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सिंपली दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन Tn इज इक्वल टू Tn 2Tn/2 प्लस C ऑफ n। ये कास्ट है Cn। तो Tn हमने जो रिकरेंस रिलेशन, तो फर्स्ट नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, Tn को, ठीक है। देन Tn इज डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n/2। तो इसकी कास्ट क्या है, देखिए फर्स्ट की कास्ट क्या है, जो रूट नोड है उसकी कास्ट क्या है, Cn। देन जो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n/2। यहाँ पे देखिए इसमें दिस इज डिवाइडेड इनटू T ऑफ n इज डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n/2। तो इसकी कास्ट क्या होगी, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये T ऑफ n/2 इज इक्वल टू 2Tn/4 प्लस C ऑफ n/2। तो ईच की नोड की कास्ट क्या आ जाएगी यहाँ पे, C ऑफ, इस नोड की कास्ट क्या हो गई, C ऑफ n/2। इस नोड की कास्ट भी क्या हो गई, C ऑफ n/2। अगेन this is divided into number of sub problems, each problem is divided into two sub problem each of size n/4। तो यहाँ पे कास्ट क्या हो जाएगी, C of n/4। सिमिलरली C of n/4, इसकी कास्ट क्या होगी, C of n/4। सिमिलरली C of n/4। नेक्स्ट की कास्ट क्या होगी, दिस इज C of n/8, C of n/8। Similarly, C of n/8, C of n/8, C of n/8, C of n/8। Similarly, इसकी कास्ट क्या हो जाएगी, C of n/8 and C of n/8। In this process is continue until the sub problem of is reduces its size that is equal to 1। ये हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस जब तक कि ईच सब प्रॉब्लम का साइज क्या ना हो जाए n। तो ये देखिए क्या है, इस लेवल, ये लेवल क्या है, दिस इज लेवल 0। तो लेवल 0 पे कास्ट क्या आई, टोटल कास्ट ऑफ लेवल 0 दैट इज Cn, ठीक है। लेवल 1, टोटल कास्ट एट लेवल 1 क्या आई, टोटल कास्ट एट लेवल 1 C ऑफ n/2 प्लस C ऑफ n/2, C ऑफ n/2 प्लस C ऑफ n/2। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू Cn। टोटल कास्ट एट दिस लेवल, लेवल 2, ये क्या होगी, C ऑफ n/2, 4 C ऑफ n/4 टाइम्स है, तो 4 ऑफ Cn इंटू n/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अगेन Cn। तो ईच स्टेप पे कास्ट क्या आ रही है, ईच स्टेप पे कास्ट क्या आ रही है, दिस इज लेवल 3, दिस इज लेवल 3, दिस इज टोटल कास्ट ऑफ, दिस इज आल्सो टोटल नंबर ऑफ 8 नोट्स है, 2 to 4 to 6 to 8 to 6। हेलो, यस सर ये फुल बाइनरी ट्री के लिए है ना सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए सर कुछ अलग से होगा ना इसमें। ये कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? नहीं सर, जो अभी जो आप ट्री जो बनाए हैं तो ये तो सर फुल बाइनरी ट्री है। ये तो फुल बाइनरी ट्री होगा ही ना, हमेशा जो प्रॉब्लम है आपकी वो ईच प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो कभी हाफ में हो रही है, कभी 2 हाफ में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तो फुल बाइनरी ट्री ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कास्ट एट ईच लेवल फाइंड करना है। तो इसकी कास्ट क्या आ गई, कास्ट एट ईच लेवल Cn 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 Cn। एंड अब कितने लेवल होंगे आपको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर इन दिस वे। ये प्रोसेस रिपीट होगा अंटिल द साइज ऑफ ईच नोड। तो अब देखिए कास्ट ऑफ लेवल 0 क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ लेवल 0 Cn, कास्ट ऑफ लेवल 1 Cn, cost of level 2 Cn। then determine the total number of levels in the recursion tree, total number of levels in the recursion tree। अब हमें यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट कि टोटल वी डिटरमिन टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन द recursion tree।
डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्जन ट्री। तो साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल 0 क्या है? साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स एट लेवल 0 n/2 टू द पावर 0 है। साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल 0, L0 मीन्स लेवल 0 की क्या है जनरली n/2 टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू n/1, ये n है, ठीक है। देन साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल 1, तो इस टाइम वो 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है, तो दिस मीन्स साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल 1, ये क्या हो जाएगा n/2 टू द पावर 1, दिस इज इक्वल टू n/2। सिमिलरली साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एज लेवल 2, ये क्या हो जाएगा लेवल 2 पे देखिए कितनी है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम, ये लेवल 1 पे n/2 है, लेवल 2 पे क्या है n/4 है, दिस मीन्स n/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये n/2 स्क्वायर। सिमिलरली n क्यूब हो जाएगा L3, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल L3, दिस इज n/2 cube, and in this way we determine, means continuing in similar manner, we have size of sub problem at level I, size of, ये प्रोसेस हम काटे, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल Li, मीन्स लेवल I क्या हो जाएगी, तो साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल I क्या हो जाएगी, दिस इज n/2 की पावर I होगा, n/2 की पावर I, एंड सपोज एट लेवल x, सपोज at last level size of sub problem becomes 1, size of sub problem becomes 1, suppose at last level size of sub problem becomes 1। तो यहाँ पे क्या है लास्ट लेवल, सपोज लास्ट लेवल हमारा x है, यदि हम इसको बोल दें कि लास्ट लेवल x है या लास्ट लेवल हमारा क्या है p है, ठीक है। सपोज एट लास्ट लेवल साइज ऑफ सब प्रॉब्लम बिकम्स 1, तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा n/2 टू द पावर p, लास्ट लेवल हमारा क्या है p, तो वहां पे साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम क्या होगी n/2 की पावर p होगी, एंड दिस इज इक्वल टू, हमें जूम करके चल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस मीन्स व्हाट, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर p, दिस मीन्स p इज इक्वल टू log ऑफ n/2, ये आ गया। तो लास्ट लेवल क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल, ये क्या है p इज द लास्ट लेवल ऑफ रिकर्जन ट्री। हमें जूम करके चल रहे हैं कि सपोज द लास्ट लेवल नेम्ड एज p, द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम बिकम्स 1, तो n/2 की पावर p दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो दिस मीन्स p इज इक्वल टू log ऑफ n/2, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, अब हमें क्या है ये लास्ट लेवल क्या है log ऑफ n/2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल क्या होंगे, बिकॉज लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू log ऑफ n/2, hence this implies total number of levels in recursion tree is equal to log of n/2 plus 1, ठीक है। 1 क्या है 0th लेवल, एंड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड अप टू log of n/2, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन ए रिकर्जन ट्री, ये इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द हाइट ऑफ रिकर्जन ट्री, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज, मींस टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्जन ट्री इज नोन एज height of recursion tree, and then after that we determine the number of nodes in the last level। यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में ही था कि हमें जो है क्या डिटरमिन करना था, एक तो लास्ट लेवल क्या है, ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हमें डिटरमिन करना था, देन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लास्ट लेवल, और देन फिर कॉस्ट ऑफ लास्ट लेवल।
ये हमें अभी डिटरमिन करना है। द नंबर ऑफ नोड्स इन दी लास्ट लेवल, तो नंबर ऑफ नोड्स इन दी लास्ट लेवल कितने होंगे? द नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेवल 1 कितना है, लेवल 0 कितना है, 2 की पावर 0। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेवल 0 क्या है, 2 की पावर 0। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 1 दैट इज 2 की पावर 1। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 2 दैट इज 2 की पावर 2। यहाँ पे देख रहे हैं लेवल 2 पे क्या है, 4 है। सिमिलरली 2 की पावर 3 8 है। तो कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर वी हैव लास्ट लेवल मींस लेवल क्या है, लास्ट लेवल क्या है, log of n base 2 has how many number of nodes? तो दिस मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ, देन वी डिटरमिन द नंबर ऑफ, यहाँ पे हमें क्या कहें, द नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल p। ठीक है, हमें ये डिटरमिन कर, लास्ट लेवल क्या है आपका p है, तो डिटरमिन करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन द लास्ट लेवल। तो वी सी द रिकर्जन ट्री एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0, L0 मीन्स लेवल 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 0। द नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 1, दिस इज 2 की पावर 1। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 3 2 that is equal to 2 की power 2। then the number of nodes at level 3, this is equal to 2 की power 3 and so on। in this way the number of nodes at last level, the number of nodes at level लास्ट लेवल क्या है, p की वैल्यू क्या है, log of n base 2। तो this is equal to 2 की पावर p, this means this is equal to 2 की पावर log of n base 2 and this is also written as, by using the logarithmic properties, this is written as n to the power log of 2 base 2। log of 2 base 2, log of 2 base 2 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो दिस मीन्स द नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n, द नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल। देन हमें क्या डिटरमिन करना है, हमने डिटरमिन कर दिया कि लास्ट लेवल क्या है, लास्ट लेवल में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n है। देन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड, हमें सारे नोड की कॉस्ट मिल चुकी है। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड। तो कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड दिस इज इक्वल टू द साइज ऑफ ईच नोड इन अ लास्ट लेवल, वो क्या है, T1 है। तो दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n है एंड ईच का कॉस्ट क्या है, T1 है। ईच का कॉस्ट क्या है, T1 है। तो दिस मीन्स सपोज T1 मीन्स when the problem size is reduces to 1, so suppose we assume that the value of T1 is constant, this means cost of last level is equal to Cn, or we can say that this is equal to theta of n। Cn is equal means this is equal to theta of 1। then add the cost at each level to determine the total cost of recursion tree in the form of asymptotic notation। ठीक है, तो add cost of all nodes means add cost of all nodes, add cost of all nodes, this represents the total cost of recursion tree। तो add cost of all nodes at each level। ठीक है, ये समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल नोड्स एट ईच लेवल। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ क्या है, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं log of n बेस 2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो फर्स्ट की क्या है कॉस्ट, n है, 0 लेवल की, 1 लेवल पे नोड्स की कॉस्ट क्या है, n है। लास्ट में अप टू log of n माइनस ये जो है इसकी कॉस्ट क्या है, log of n
प्लस लास्ट नोड की कास्ट, दिस इज लास्ट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लास्ट नोड। यहां से देखिए जो लास्ट नोड आया जिसमें ईच प्रॉब्लम साइज इज रिड्यूसेस अप टू 1, यहाँ पे क्या है, जब लास्ट लेवल है T1 अप टू T1, ये है रिड्यूसेस है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर लिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन द लास्ट लेवल, एंड देन वी फाइंड द टोटल कॉस्ट एट दिस लेवल, एंड देन वी डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिकर्जेंट ट्री। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिकर्जेंट ट्री देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली व्हाट हियर, तो टोटल नंबर ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n प्लस 1 नोड होंगे टोटल, लॉग ऑफ n, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पे, लॉग ऑफ total number of nodes log of n base 2, so this means this is equal to n of log of n base 2 plus cost of last level क्या है, theta of n, तो this is less or equal to, हम इसको लिख सकते हैं, this is less or equal to c of n log of n base 2 in terms of asymptotic notation, and we can say that the complexity of this is less or equal to, this means we can say that Tn is equal to theta of n log n, Tn is equal to theta of n log n. So this is clear how we determine the complexity of, we again repeat the same here. स्टेप फर्स्ट, बी ड्रा रिकर्जेंट ट्री बेस्ड ऑन अ गिवन रिकरेंस रिलेशन, जैसा रिकरेंस रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप रिकरेंस ट्री ड्रा करेंगे। देन बी डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच नोड इन दैट लेवल। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ रिकर्जेंट ट्री, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग अ टोटल नंबर ऑफ लेवल्स मींस बी डिटरमिन द number of nodes in the last level, number of nodes in the last level, and then we find the cost of last level, and then we find the total cost of recurrent tree, total cost of recurrent tree that is equal to cost of recurrent tree of each level. तो सिंपली हमने यही किया यहाँ पे, फर्स्ट इफ दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन वी ड्रॉ अ रिकर्जेंट ट्री, देन कॉस्ट रिकर्जेंट ट्री में इसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट रिकर्जेंट ट्री मींस it means here we represent the cost of each node, तो यहाँ पे cn by 4, cn by 2, cn by 2, cn by 4, cn by 4, cn by 4, cn by 4 and so on. Then we find the sum of cost at each level, यहाँ देखिए sum of cost at तो cn, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लास्ट में, हम तब तक नोड को जब तक कि उसकी साइज रिड्यूस होके 1 ना हो जाए, तो डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्जेंट ट्री हमें फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल L0 पे क्या है, n की पावर 2 की पावर 0, n डिवाइडेड बाय दिस इज n। लेवल 1 पे क्या है, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, इस प्रॉब्लम साइज। लेवल 2 पे क्या है, n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। सिमिलरली 3 पे n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। सिमिलरली साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल i, n डिवाइडेड बाय 2 की पावर i। सपोज एट लास्ट लेवल हमने एज्यूम किया कि लास्ट लेवल क्या है आपका p है, तो साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम बिकम्स क्या हो जाएगी, n डिवाइडेड बाय 2 की पावर p, और वी एज्यूम दैट n डिवाइडेड बाय 2 की पावर p दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ n बेस 2। तो ये हमने डिटरमिन कर दिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लास्ट नोड, मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन अ नंबर ऑफ लेवल्स इन ए बाइनरी ट्री। तो नंबर ऑफ लेवल्स क्या हो गए, यल टोटल नंबर ऑफ लेवल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 लेवल होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, लेवल 0 से हो रही है। तो दिस मींस p की वैल्यू आ गई log n बेस 2, दिस रिप्रेजेंट्स द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल, p रिप्रेजेंट्स द लास्ट लेवल। अब हमें फाइंड करना है कि जो p लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल p, तो नंबर ऑफ नोड्स हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ नोड्स हम देख रहे हैं, फार्मूला डिटरमिन कर रहे हैं कि L0 पे कितने हैं, 2 0 हैं, 2 टू द पावर 0, L1 पे 2 टू द पावर 1, L2 पे 2 की पावर 2, L3 पे 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली p पे क्या होंगे, 2 की पावर p, तो 2 की पावर p log ऑफ p की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ p, तो दिस मींस 2 की पावर log ऑफ n बेस 2, and by using the property of logarithmic, this is also written as n to the power log of
2/2, log ऑफ 2/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, log ऑफ 2/2 की वैल्यू होती है 1। तो दिस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल दैट इज इक्वल टू n। अब कास्ट ऑफ, देन आपको फाइंड करना है कास्ट ऑफ लास्ट नोड। तो कास्ट ऑफ लास्ट नोड क्या होगा, ईच प्रॉब्लम की साइज क्या है, इस सब प्रॉब्लम की लास्ट नोड पे, लास्ट लेवल पे T1 है, तो टोटल कास्ट इसकी क्या आएगी, n मल्टीप्लाई n नोड है, तो n मल्टीप्लाइड बाई T1। तो T1 बी एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ T1 इज कांस्टेंट, तो दिस इज Cn। Cn is listen also in terms of theta notation. If this is less or equal to Cn, so we can simply say that this is theta1. Then find the total cost of recursion tree. Total cost recursion tree means summation of cost of all nodes at each level. तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0th लेवल की कास्ट क्या है, n है, 1 लेवल की कास्ट क्या है, 1 लेवल की कास्ट क्या है, 1 लेवल की कास्ट क्या है, फर्स्ट लेवल पे n है, सेकंड लेवल पे n है, थर्ड लेवल पे n है, एंड अप टू लास्ट लेवल पे log n/2 पे क्या है, ये जो है log n/2 - 1। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, 0 टू log of n/2 - 1 होंगे। तो टोटल यदि हम कहें तो टोटल क्या हो गया, log of n/2 होंगे, बिकॉज स्टार्ट 0 से हो रहा है एंड अप टू log of n/2 - 1। तो टोटल कितने नोड हो गए आपके, लेवल हो गए, log of n/2 हो गए, प्लस ये लास्ट लेवल मींस जिस लास्ट लेवल जिसकी वैल्यू क्या है, log of n/2 है, तो उसकी कास्ट हमने यहाँ डिटरमिन कर लिया है थीटा n। पुट ऑल दोज वैल्यू, तो दिस इज n of log n/2 प्लस थीटा ऑफ n, दिस इज लेस और इक्वल टू c of n log n/2। and from the definition of theta notation we can say that the complexity of this recurrence relation is Tn is equal to theta of n log n. So this is clear, and the next example is that is for you, find the solution of recurrence relation Tn is equal to 3Tn/4 plus c of n square। ठीक है, आपको इसका फाइंड करना है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन और इन टर्म्स ऑफ विगो नोटेशन। ठीक है, 3Tn/4 प्लस c ऑफ n स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, द प्रॉब्लम साइज क्या है, प्रॉब्लम साइज ईच सब प्रॉब्लम साइज इज n/4 एंड ईच टाइम द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 3 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n/4। ठीक है, ईच ऑफ साइज n/4। तो कास्ट क्या है, ये जो Cn स्क्वायर है, दिस इज द कास्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड मर्जिंग मींस कंबाइनिंग द सॉल्यूशन टू अचीव द सॉल्यूशन ऑफ होल प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ सिंपली रिकर्जन ट्री ड्रा करना है। तो ये पहला नोड होगा आपका रूट नोड, जिसकी कास्ट क्या होगी, जो Tn है, फिर ये दिस इज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, T ऑफ n/4, ईच की साइज क्या होगी, T ऑफ n/4, T ऑफ n/4, फिर अगेन रिप्लेस n/n/4, तो क्या हो जाएगा, T ऑफ, ये फिर 3 में डिवाइड होगा, फिर ये, ठीक है, ईच की साइज n/16, ठीक है, n/16, n/16 ये आएगी, फिर इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। देन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कास्ट रिकर्जन ट्री। तो कास्ट इसकी क्या है, कास्ट इसकी क्या है, Cn स्क्वायर है रूट नोड की, क्योंकि ये कास्ट क्या है, Cn स्क्वायर। देन क्या, ये क्या हो जाएगी, c ऑफ n/4 स्क्वायर, c ऑफ n/4 स्क्वायर, c ऑफ n/4 हो जाएगी इसकी कास्ट। देन इसी तरीके से कास्ट निकल, देन सम ऑफ द कास्ट we determine the total number of levels in a recursion tree, and after that we determine the number of nodes in a last level। ठीक है, number of nodes, then we sum the cost of all the cost of nodes at each level to obtain the total cost of the tree, and we simplify the expression to obtain the solution in the form of asymptotic notation, and finally we write the solution in terms of asymptotic notation। ये आप करिएगा। if any doubt then please ask। anyone have any question? Turn on your video for attendance।